Okay, so we are going to start subquery. Subquery means, any idea about subquery? Anybody? What do you mean by subquery? Any Query idea? under a query. Yes, yes. Once again. Query under a query. Exactly. So if you have a query inside a query, is called a subquery. It is subquery means basically subquery means query inside a query. Okay, if you are writing query inside a query, is called a subquery, and this is also called nested query, and inner query. Okay, so when you write one query inside another query, that is called a subquery. So other name of subquery is, it's a nested query or inner query. Okay, so what is the main use of subquery? Okay, so I'll tell you one requirement, you will have to answer me. Okay, suppose basically you have employee name, then you have salary. Okay, employee name and salary. Here I have employee name as Krishna. Okay, 25,000. Sunil, 37,000. Sri, 33,000. We have Nandini, 27,000. Then we have Soumya, 32,000. Then we have Pitabas, 20,000. Okay, suppose these are the employees I have in a table. Okay, so I want to find out highest salary. Can you guys tell me, if I have to find out highest salary, so how to get that? Max. Okay, so what you will basically write is select Max. max of salary. Max. Okay, from table, let's say employee. This is employee table. Let's assume this table is employee table. So you basically write select max of salary from EMP. But tell me guys, I want the highest salary plus the employee name. Okay, the person who is getting the highest salary, I want to also check the name. If I want to get the highest salary along with the name, now here Sunil is getting the highest salary. Okay, I want output like Sunil, then 37,000. Tell me, how would I get it? Okay, any idea? I want highest salary along with the name, the employee who is getting this highest salary. Many people will say group by. Some of you might have thought of group by, but group by is not the solution. If you just group by it, okay, you'll say group by sum of salary, you'll get the same output, because so it will take employee name and group it. Okay, so Krishna, Sunil, Sri, Nandini, same output you'll get, and salary also same thing you'll get. But I'll not get a single record where I'm looking for only highest salary and the employee name. Group by is not the solution. If you have this thought in mind, then take it out. Okay, so you will not get this output so with group by or with some other approaches. Okay, the only solution is, okay, you'll have to write a subquery. So how to write a subquery? I'll tell you. See, you will first write okay. So you'll first write select max of salary
from EMP. What is the output you will get? Who was getting highest salary in our table? Sunil. Okay. So basically, if you just write max of salary, what is the output we are going to get? 37,000. 37,000. Okay. Okay. And we have two columns. If you remember, we have employee name and salary. So we have two columns in this table, employee name and salary. So you basically know by using max function, you got maximum of salary, that is 37,000. See, what I will do is I'll write one more query on top of it. I'll say select, okay, select employee name, comma, salary from EMP table. Okay, select employee name, comma, salary from EMP table, where salary equals to, okay. So what will happen over here is, first, see there are like two types of subqueries. One is called correlated subquery, one is called non-correlated subquery. Nobody will ask you all these details, but you should know it. Okay, one is called correlated subquery, and another one is called non-correlated subquery. Now what we are learning is non-correlated subquery. Forget about correlated. Correlated we'll discuss it tomorrow. Alright, so in this non-correlated subquery, what will happen is inner query will be executed first. Okay, inner query gets executed first, and whatever output or whatever result you will get after the execution of inner query, that result will be used as an input for outer query. So now inside the bracket, the query which I have written is called an inner query. So the entire thing is obviously a subquery. This entire thing is a subquery, but the query which you have written inside the bracket is called inner query, and this is called an outer query. So obviously बाहर लिखा है outer query, inside bracket it is inner query. So clear so far? Yes. And the result of inner query, okay, the result of inner query, okay, is used as an input for outer query. That means what? Whatever output जो आपको यहाँ पे output मिलेगा या result मिलेगा, ये जो result है ना, ये outer query के लिए ये input बन जाएगा. ठीक है? The result which you will get from this inner query, that will be used as an input for outer query. Okay? That means what? Suppose select maximum of salary from employee will get how much? 37,000. Okay, we'll get 37,000. So inner query execution is done. Okay, inner query execution is done, and we got 37,000 as an output for this a query result. 37,000 we got. Okay, so now what we are trying to do is, so then the outer query will be executed. Okay, so outer query will be executed. Now outer query will be executed means, you know, the execution will always start from table, from this. Okay, execution never gets started from select clause. Okay, it always starts from. Okay, so we'll go to from employee, where salary equals to how much, guys? From table name, from EMP, where salary equals to Max. 37,000, because you have already 80 output already you got it, right? ऑलरेडी आउटपुट मिला है यहाँ पे, जो इनर क्वेरी का जो आउटपुट है आपको ऑलरेडी मिल चुका है, विच इज 37,000. सो डायरेक्टली सैलरी वैल्यू, सैलरी कॉलम वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विथ 37,000. That means this query is, see, this query gets executed first. ये query first run होगा, then whatever output you will get, okay, that output will be used as an input for this query. So clear?
अभी आप लोग मुझे बताओ, अभी मैं लिखूंगा तो मुझे क्या आउटपुट आएगा? सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इक्वल्स टू 37,000। तो 37,000 किसको मिला था सैलरी? So, तो सो वी विल गेट आउटपुट employee name and salary, which is nothing but your, see, you will get Sunil 37,000. This is the output result we will get. So clear? Or any questions here? Any questions here, or you guys are clear? yeah. Clear, right? Yes. Okay. So now, and you should remember one thing here, your outer query always depends on inner query. जो ये नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी मैंने आपको बताया ना, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है? इनर क्वेरी गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ओके, देन outer query will be executed, or outer query gets executed. Now result of inner query or output of inner query, so I'll write down few points. So I think we already have note, so nothing to worry, but see, in non-correlated subquery, correlated subquery, see, inner query gets executed first, then outer query. Then output or result of inner query is used as an input for outer query. So जो result हमको मिलेगा inner query रे, that we are going to use as an input for outer query. Outer query always depends on inner query. So clear all these 3 points? Yes, sir. Okay. Now let's try to July batch. Okay. Select start from. We have an employee table. Let's see this employee table has salary or not. No. Talented. Okay. So now, if I want to check who is getting highest salary, what should I write? Tell me, guys. You have to tell me the query now. Select star. Select. So actually, you can write select star directly, but you try to first write the inner query. Then on top of that, you will write the outer query. See, you can. I mean, for your understanding, it is always better you write the inner query first. So what is inner query? Select max. Max of Salary. Employee salary. EMP salary. Okay. Select max of EMP salary from, let's say, employee. Okay. Then
select. Let's say I'm writing star. I want to see everything of that employee. Name. Okay, select star from EMP employee. Where? Where salary? Where Employee salary equal to this. equals to this. Okay, that means this is the inner query and this part is the outer query. So whose record we are going to see now in the output? Whose record in this data? Bhaskar. Oh, Got it? If you just execute this part also, you can execute. See, in this you will get highest salary, but now you are passing a highest salary को आप लोग पास कर रहे हो external या outer query को. Okay. Got it? Okay. Now we will go through these notes. Okay. See, I have already mentioned a subquery is called inner query or nested query. A query inside another query is called a subquery or subquery or nested query. There are two types of queries: non-correlated and correlated. In non-correlated subquery, okay, outer query always depends on inner query. It means inner query gets executed first, after that outer query gets executed. Result of inner query is used as an input for outer query. Okay, in correlated subquery, in inner query, this don't worry about this, we will discuss it tomorrow. Okay. So let's say I'll tell you what is. Okay. So here, suppose if I want to get, okay, find the employee details who is getting highest salary. Okay. Find the employee details अब बताओ सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसको मिल रहा है? Abhishek को मिल रहा है. Okay, so Abhishek is the one who is getting second highest salary. How to find second highest salary? Okay, it's very simple. No. Less than 2. No, not less than 2. Less than 2, how you would count less than 2? Select star from employee. Okay. Okay. So ये query क्या करेगा? ये query आपको कितना बताएगा? What is the output you will get, guys? Bhaskar 39. Number. You will get employee salary as 39,875, right? So you'll get the highest salary over here. But जब आप less than इसको छोड़ के और कौन है किसका highest है? अगर मैं इस row को exclude करता हूँ, if I am excluding this row, then who's the next person who is getting highest? Bhaskar. No. Abhishek, sir. Abhishek, right?
सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये क्वेरी आप देखो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 39875.75, तो मतलब इसको छोड़ के, ओके, इफ़ एम्प्लॉय सैलरी लेस देन दिस, इनको छोड़ के जितने सारे एम्प्लॉय यहाँ पे है वो इज़ लेस देन 39,875, इनमें से मैक्स कौन है? अभिषेक, यस और नो? Yes. Okay, so let's try to execute this query. What output we are getting? अभिषेक का सैलरी इतना ही है 35,875, करेक्ट? ठीक, यस और नो? Yes. तो मैं ऊपर ये लिख रहा हूँ, आया अभिषेक का सैलरी, समझा? या नहीं समझा? इसमें दो इनर क्वेरीज है, ठीक है, दो इनर क्वेरीज है। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ओके, पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो इसमें से अपने को 39,000 समथिंग मिलेगा। एक मिनट में आपको ये करके दिखाऊँ, ठीक है। ओके, सो पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? ये वाला इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। डू यू गाइस एग्री? Yes. इसमें क्या मिलेगा अपने को? कितना मिलेगा एम्प्लॉय सैलरी? यस और नो? और सेकंड क्वेरी में क्या कर रहा हूँ? सेकंड क्वेरी में लिख रहा हूँ सिलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, इससे जो सैलरी कम है, मतलब इससे अगर कम है इसको मैं बात दे दूँ तो फिर मेरे पास ये तीनों सैलरीज हैं, ठीक है। इनमें से मैक्स किसको मिल रहा है? अभिषेक 35,000. अभिषेक को 35,000 मिल रहा है, राइट। सो अभिषेक को 35,000 मिल रहा है। सो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा मुझे, यहाँ का आउटपुट है 39,875, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा 35,875.75, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू 35,875, सो आई गेट अभिषेक का रो, अभिषेक का रो मुझे मिलेगा। यस और नो? Yes. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर बार बार आप, मतलब कोई आपको बोला कि 10th हाईएस्ट, ओके, 10th हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए आप ये प्रोसेस में जाओगे ना, आपके पास 9 सब क्वेरीज, यहाँ पे कितना सब क्वेरीज हुआ? 2 सब क्वेरीज आपको लिखना पड़ा। सो सेकंड हाईएस्ट के लिए 10th के लिए 10th करना, 10 सब क्वेरीज लिखना पड़ेगा। ये सर नो, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन ऐसे करके लिखना पड़ेगा। गॉट इट? टॉप 5 में भी आ जाता है. टॉप 5 में कैसे आएगा? सैलरी का ऑर्डर थोड़ी ना ठीक है। सब टॉप 5 में टॉप 5 को दिखाएगा, ओके, टॉप 5 में टॉप 5 को दिखाएगा, नॉट द टॉप 5 5th। ऑर्डर भाई. क्या क्या बोलो? बोलो गाइस, जो आप जो सॉल्यूशंस है। शिट यार,
Guys, there was network issue. Am I audible now? Am I audible, guys? Am I audible now? There was a network issue. Yes. Okay. Let me share my screen once again. ठीक है, बताओ फिर कैसे होगा, आप लोग क्या सोच रहे हो? बताओ, अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट मुझे चाहिए, am I audible? Yes, sir. ओके. सो ये जो क्वेरी है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्या, लेंथी हो जाएगा. सेकंड हाईएस्ट के लिए कितना बड़ा क्वेरी लिखना पड़ रहा है. अभी मैं थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, सिक्स्थ हाईएस्ट ऐसा करके क्वेरी मेरे पास आएगा. सो इट विल बी वेरी टफ. इसका कोई शॉर्टकट मेथड है, मतलब जैसे कि मतलब शॉर्ट से हो सकता है, इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा. देखो इसका क्या शॉर्टकट है. Select top, okay, select top 3, let's say top 2, EMP salary from employee, okay, select Okay. top 2 employee Okay. salary from employee, okay. So top 2, order by, okay, order by descending, order by, sorry, employee salary descending. ठीक है, मुझे टॉप 3 चाहिए. मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप 3 एम्प्लॉय सैलरी ऑर्डर बाय डिसेंडिंग. गॉट इट? ओके. लेकिन मुझे कौन सा वाला सैलरी चाहिए, मुझे टॉप 3 में तो सब आ रहा है, राइट? $35,000. 29,000, यस और नो? बिकॉज मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए. Okay. ओके. सो मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट, ओके, टॉप 1 फ्रॉम मिल रहा है ये.
7. Okay, so this is the shortcut. Okay, there are other ways, you will learn this going forward. Other ways है कैसे हम लोग second highest, third highest, nth highest finding. So this is basically finding nth highest salary. सबके लिए काम करेगा, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे काम करेगा. Finding nth, and this is an interview question guys. फाइंडिंग nth हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी. आप टॉप 3 चाहो, टॉप 2 चाहो, टॉप 2 चाहो, मतलब बेसिकली हाई यहाँ पे ही आपको चेंज करना है. ठीक है, आप टॉप 4th चाहो, कुछ भी चाहो यहाँ पे चेंज करो, यू विल गेट द आउटपुट. ओके, सो काम है ये कैसे काम किया बेसिकली. देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ. आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे काम किया ये. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू. सो इनर क्वेरी आपको पता है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले. इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे, पहले क्या आएगा. टॉप 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में. टॉप 3 आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. पहले आएगा 39,875. ओके, उसके बाद आएगा क्या आएगा 35,875. उसके बाद आएगा मुझे 29,875. ओके, क्लियर. 77. ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो यू विल गेट आउटपुट लाइक दिस. ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो आउटपुट आपको मिला ना यहाँ पे, ठीक है, द आउटपुट विच यू हैव गॉट इट, यू आर क्रिएटिंग ए टेबल एलियस. अभी टेबल एलियस तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट. यू गाइज वुड हैव प्रैक्टिस्ड इन जॉइंट्स. दिस इज कॉल्ड अ टेबल एलियस. जैसे कॉलम एलियस रहता है, दिस इज कॉल्ड अ टेबल एलियस. नाउ यू आर क्रिएटिंग अ टेम्पररी टेबल. वट एवर आउटपुट यू हैव गॉट, ये जो आउटपुट मुझे मिला है, ये आउटपुट को मैं एक टेबल में डाल रहा हूँ, दैट इज EM करके टेबल में. क्लियर, इट्स अ टेम्पररी. ये क्वेरी एग्जीक्यूशन के बाद आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EM करोगे तो नहीं चलने वाला है. द स्कोप ऑफ दिस टेम्पररी टेबल टिल द टाइम योर क्वेरी गेट्स एग्जीक्यूटेड. जब तक क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है इसका स्कोप रहेगा. क्वेरी एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, आप सेपरेटली एग्जीक्यूट करना चाहोगे इसको EM को लोके, ये आउटपुट नहीं देगा, बिकॉज इट इज़ अ टेम्पररी टेबल विच इज़ क्रिएटेड इन रन टाइम. जब क्वेरी रन हो रहा है, रन टाइम में ऑन द गो क्रिएट हो रहा है. क्लियर, इसको बोलते हैं रन टाइम में क्रिएट होना. मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, क्रिएट हो जाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, उसके बाद टेबल में कुछ नहीं रहेगा. आप एग्जीक्यूट जाके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EM करो, कुछ नहीं मिलेगा आपको. सो ये समझो जो यहाँ पे आउटपुट मिला, बेसिकली ये जो सब आउटपुट मिला, ये EM करके टेम्पररी टेबल में, जो कि टेबल एलियास है, टेम्पररी टेबल में ये आ गया. गॉट इट. ओके, तो आप अभी क्या कर रहे हो, सिलेक्ट टॉप 1. ओके, सिलेक्ट टॉप 1 एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम EM कर रहे हो. गॉट इट. सिलेक्ट टॉप 1 एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम EM ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी. इसको एक बार आउटपुट आ गया तो इसको भूल जाओ. अभी आप ये आउटपुट इतना आ गया ना तो भूल जाओ. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, चलो टॉप 1 तो मैं ऑलरेडी बोला था कि टॉप पूरा एंड में एग्जीक्यूट होता है. तो ये क्या करेगा, चेक करेगा फ्रॉम EM. ओके, EM टेबल्स को क्या करो, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी करो. ठीक है, EM टेबल, ओके, एम्प्लॉय सैलरी जो है उसको ऑर्डर कर दो असेंडिंग. यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर. यस और नो. डिसेंडिंग के लिए DESC लिखना पड़ता है, बट असेंडिंग के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. द डिफॉल्ट ऑर्डर
ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर होता है मतलब अभी आपका ये वाला पार्ट चल गया, टॉप तो बाद में ही रन होता है, ठीक है। मैं सिलेक्ट ईएमपी सैलरी फ्रॉम ईएम ऑर्डर बाय ईएमपी सेल करूँगा तो मेरा ये जो आउटपुट है 29,875 पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा 35,875, उसके बाद आएगा 39,875। यू गॉट दिस, you got all this data in ascending order, okay, but ये डेटा से आपको चाहिए क्या? टॉप वन, राइट? yes or no? Yes. करेक्ट, टॉप वन। सो टॉप वन मतलब कौन सा रिकॉर्ड? यही है। तो वी गॉट द थर्ड हाईएस्ट सैलरी। nth मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंज करो, यहाँ पे तुम्हें 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 10th हाईएस्ट चाहिए, 20th हाईएस्ट चाहिए, 100th हाईएस्ट चाहिए, जस्ट यू चेंज इट ओवर हियर, you will get okay the nth highest employee salary, or if you want employee name and all then वो भी possible है। अगर एम्प्लॉय नेम चाहिए तो इसको ब्रैकेट दे दो, इसका जो आउटपुट है ऊपर एक क्वेरी को पास कर दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू ये वाला, मतलब 29,875 यहाँ से मिलेगा। ओवरऑल ये पूरा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो विल गेट 29,875, और तुम सीधा बोलोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉय सैलरी कॉल्स 29,875 रुपीज 77 पैसा, यू विल गेट रिकॉर्ड ऑफ चंद्रशेखर। Got it? Understood, guys? Yes. Okay, now tell me, we'll try to write one more query. बताओ मुझे। ओके, फाइंड आउट एम्प्लॉय डिटेल्स हु आर गेटिंग सैलरी मोर देन द एवरेज सैलरी। बताओ, ऑलरेडी यहाँ पे है। फाइंड आउट द एम्प्लॉय डिटेल्स हु आर गेटिंग सैलरी मोर देन द एवरेज सैलरी। क्या लिखना पड़ेगा बताओ? कौन कौन बंदे हैं जो कि एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी इनको मिल रहा है? सो पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज। करेक्ट, पहले अपने को सिलेक्ट, ओके, एवरेज सैलरी, दैट इज नथिंग बट ईएमपी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मिल गया। यहाँ पे आपको ये चारों का, सो ये चारों को सम करके डिवाइडेड बाय 4 करके एवरेज निकलेगा। ये सर नो, एवरेज तो आपको पता ही है ना। Yes. ओके, तो ऊपर एक क्वेरी लिख दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, वेयर, ओके, Salary. वेयर एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन दिस। यस और नो? मैं बोला एवरेज सैलरी से किसको ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं? ओके, यू कैन राइट दिस क्वेरी ऑन योर ओन। आप ये लोग ट्राई, किससे एवरेज सैलरी से कम मिल रहा है सैलरी, तो लेस देन लगा दो, ख़त्म। मतलब सपोज इसका, हाँ, ये जो सपोज सैलरी है बेसिकली ये लोगों का रहेगा, ये दोनों का रहेगा एवरेज सैलरी से ज़्यादा रहेगा, ये दोनों का एवरेज सैलरी से कम रह सकता है। दैट इज़ माई गेस, बट आप क्वेरी में लिख के करोगे तो फिर ये 2 क्वेरी लिखना है, पीपल हु आर गेटिंग हाईएस्ट सैलरी, आई मीन गेटिंग सैलरी मोर देन द एवरेज सैलरी, लेस देन द एवरेज सैलरी। ठीक है, मैं जैसे ही बोलता हूँ कि चलो
ये बंदे ने 20, 40, 16, 80, ये है, ये ए का मार्क है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है. सो एवरेज मार्क क्या है? 80, 60, 140. ओके, 80, 60 कितना हो गया? 140, 140, 40, 180, 180, 20, 200 हो गया टोटल मार्क्स. ओके, 200 डिवाइडेड बाय 4 करूँगा तो 50 हो गया एवरेज मार्क. ये सर नो, 50 हो गया एवरेज मार्क. मैं बोलूँगा कि यहाँ पे कौन बच्चे हैं जिनको एवरेज मार्क से ज़्यादा मार्क मिला है, तो ये दोनों है. 50 अगर एवरेज मार्क है, ये दोनों है सी डी, और बिलो ये दोनों मिला है. इन दोनों को एवरेज मार्क से कम मार्क मिला है. सो क्लियर? Yes. Yes. ओके. हम लोग और एक चीज़ देखेंगे. ऐसा एक टेबल से नहीं, 2 टेबल से भी आप सब क्वेरी के थ्रू डेटा लेके आ सकते हो. जैसे ये आप करके देखो, और एक लिखता हूँ मैं. ओके, सिलेक्ट टीपी कस्टमर नेम, टीपी कस्टमर कॉन्टैक्ट. ठीक है. ओके, सो हम लोग अभी जॉइंस कुछ तो था. सो गाइस, मुझे यहाँ पे चाहिए कि जो लोग फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स who are watching Kantara and KGF मूवी. ओके, सो मुझे क्या करना है? फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स हु आर वाचिंग कांतारा एंड KGF मूवी. चलो, इसमें आपने एक सब क्वेरी लगाया. ठीक है. सो कांतारा KGF आपके पास ऑलरेडी है, कांतारा एंड KGF. सो पहले ये मूवी आईडी आपने निकाला. ठीक है. सो मूवी आईडी इज द कॉमन कॉलम इन बिटवीन 2 टेबल्स. यस और नो? ये जो मूवी आईडी है दैट इज कॉमन, राइट? टिकट बुकिंग टेबल में कॉमन है, और सो आप अगर देखोगे टिकट बुकिंग टेबल में कॉमन है. ओके, यहाँ पे मैं कर देता सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टिकट बुकिंग. ओके, ये कॉमन है मूवी आईडी. इट्स अ कॉमन बिटवीन 2 टेबल्स. सो मुझे क्या करना है? मूवी आईडी पहले निकालना है सब क्वेरी के थ्रू. मूवी आईडी निकाल के वो मूवी आईडी के रिस्पेक्टिव टिकट बुकिंग टेबल में मूवी आईडी कौन सा है मुझे वो चेक करना है. करेक्ट? यस और नो? Yes. ओके, तो यहाँ पे क्या किया मैंने? मूवी आईडी निकाला. ठीक है. मूवी आईडी मतलब ये दो. ठीक है. ठीक है. फिर मैं क्या कर रहा हूँ? इनको जाके चेक कर रहा हूँ. ये एक एरर आपको मिलेगा, क्योंकि देखो इसमें ना ये जो इनर क्वेरी कितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है?
दो। 3 2 सो जब आपके पास दो वैल्यू है ना, आप इक्वल्स टू काम नहीं करेगा। ओके, सिंगल वैल्यू के लिए इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन दिस वैल्यू, लेस देन दिस वैल्यू, नंबर रहेगा तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा सकते हो। अगर ऐसे ही वैल्यू आया तो ठीक है, एक सिंगल वैल्यू आएगा तो आप सिंगल वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हो। बट इनर क्वेरी जब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा ना, तो दिस इक्वल्स टू ऑपरेटर या ग्रेटर देन, लेस देन, ये कुछ काम नहीं करेगा। ओके, सो जब यहाँ पे मैंने लिखा है in line. when subquery returned more than one value, we can use in operator. This is not permitted when the subquery follows. अगर मतलब basically if it returns multiple values, then equals to, not equals to, less than equals to, greater than equals to, these operators will not help, because ये लोग ना सिंगल वैल्यू के साथ काम करते हैं। आपको ना राइट साइड में सिंगल वैल्यू होना चाहिए। इफ़ योर सब क्वेरी रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज, देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू कैन सिंपली यूज इन ऑपरेटर। ओके, तो आप इन ऑपरेटर यूज़ करो, यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ओके, ये तीनों लोग कांतारा और केजीएफ देख रहे हैं। आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग ना यहाँ पे देख लो। ये तीनों लोग कांतारा केजीएफ देख रहे हैं। मूवी आईडी चेक कर लेते हैं। मूवी आईडी क्या था? MB0104, MB0104, MB0104। ओके, MB01 सी प्रदीप, सलोनी एंड अर्पिता। देखो ये तीनों का ही नाम आ रहा होगा, प्रदीप, अर्पिता, सलोनी। सो क्लियर? This can also be done in subqueries. Yes. Okay. मेरा बैटरी लो है। Okay. So anyways, so far clear? Yes. Yes. देखो ये मैंने बताया था। ओके, सो दिस इज योर फाइंडिंग nth हाईएस्ट सैलरी। ओके, दिस इज इनर क्वेरी। आपको फोर्थ हाईएस्ट चाहिए। सिलेक्ट टॉप 4 एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम EMP, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय को पहले डिसेंडिंग में करना है, उसके ऊपर एक क्वेरी लिखना है, और ये जो आउटपुट है इसको टेम्प करके अलियास में डालना है। टेम्प जो है टेम्पररी है, अलियास यू कैन गिव एनी नेम। मैंने बताया था इट इज़, आई मीन यू हैव टू डिफाइन द नेम। यू कैन गिव योर नेम ऑल्सो, इट विल वर्क। ऑर्डर बाय एम्प्लॉय असेंडिंग लिखो, मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देन यू विल गिव। सो कोरिलेटेड सब क्वेरी एक है, दैट विल टेक टाइम। ओके, सो कोरिलेटेड क्या करता है? कोरिलेटेड इट काइंड ऑफ, यहाँ पे इनर क्वेरी जो है आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक हम लोग ने देखा कि आउटर क्वेरी इनर क्वेरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट हियर योर इनर क्वेरी विल डिपेंड ऑन द आउटर क्वेरी। ओके, सो नॉन कोरिलेटेड में वो मैंने क्लियरली लिखा है, सिंगल वैल्यू है तो देन यू हैव टू यूज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन दिस ऑपरेटर्स। ओके, मल्टीपल रोज है तो यू विल हैव टू यूज इन। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इनर क्वेरीज रिजल्ट। ओके, कोरिलेटेड सब क्वेरी में ये पढ़ा हमने नॉन कोरिलेटेड। कोरिलेटेड सब क्वेरी में थोड़ा उल्टा चलता है, पहले आउटर क्वेरी रन होता है, आउटर क्वेरी इनर क्वेरी को इनपुट पास करेगा, फिर इनर क्वेरी आउटर क्वेरी को पास करेगा। दोनों क्वेरी कंटिन्यूसली रिलेशन में रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी। ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड इट टुमारो। ओके, ओके, ये पुराने ये भी भेज देता हूँ आप लोगों को, प्लस सब उसमें मिल जाएगा। ओके, सब क्वेरी क्लियर है। सो थोड़ा एडवांस पार्ट हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा क्लियर है।